Are you passionate about your career in law? Ready to take your legal career to new heights? Majestic Academy, a unit of SPM IAS Academy, is proud to present new batches for Judicial Service Exam, your stepping stone to a successful future in the judiciary. You will get live classes both offline and online, PDF after every class, study materials, weekly mock test, lifetime support and guidance for prelims, mains and interviews. Join our esteemed institution and be a part of the legacy of excellence. Limited seats are available. Enroll now and seize this opportunity to turn your dreams of becoming a judicial officer into reality. For more details, call us at 7577 811111. Hello everyone, welcome to Majestic Academy. Today we'll be talking about a topic of Indian Evidence Act called Dying Declaration. In this class we'll talk about Dying Declaration, उसका sections कहाँ पे दिया हुआ है Indian Evidence Act का, उसका मतलब क्या है, what is the essentials of Indian Evidence Act, उसका relevant case laws क्या है, कौन सा principle से आया है, everything that you need to know, and the relevant case laws, everything that you need to know on Indian Evidence Act will be dealt here in today's class. So let's start. The first thing is Indian Evidence Act. Here are all the topics that we are going to do today. The first topic is section and meaning, essentials, principle involved, the differences in English law and Indian law, who can record dying declaration, what is the evidentiary value of the dying declaration, and at last the relevant case laws will be done. So let's start. Okay, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे the sections and the meaning and everything, ये directly BEREC से लिया गया है. Okay, what you are seeing here in the board is directly from the BEREC. एग्जाम में तो आप directly ये याद भी नहीं कर सकते, आप लिख भी नहीं सकते हो. But for your convenient, for you to know कि कहाँ पे दिया हुआ है, I have made this slide. The first thing is कहाँ पे है dying declaration? Dying declaration है आपका section 32 में. To be very specific, section 32 का clause 1 में है. Okay, cases with the statement of the relevant facts ये आप लोग पढ़ लेना. For better understanding, I will be teaching you what is dying declaration. Okay, so the first thing, dying declaration. आप अगर ये समझ लोगे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा. डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 32 का क्लॉज 1 में. ये हम लोग को याद हो गया. डाइंग डिक्लेरेशन इज वेयर? सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, बट नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? चलो क्लास तो कर रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन का, पता भी तो होना चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन क्या है. सो डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट, is a, okay, my spelling is wrong, wait, is a statement. What kind of statement? What kind of statement? It can be oral statement or it can be documentary statement. Now what is oral and what is documentary statement? अगर आप मुंह से कुछ बोल के जाते हो किसी को oral, आप अगर किसी लेटर के थ्रू या किसी एक रिटन फॉर्म में कुछ लेके दे के जाते हो, that is written. Now this statement by whom? By a person who is dead or who died. जो मर गया, मरने से पहले उसने जो भी बात बोला है या जो भी कागज दिया हुआ है. ओके, नाउ लिसन टू मी वन थिंग. इसमें एक ट्विस्ट है कि जो भी बात बोला है, जो भी चीज़ उसने लिख के पेपर के थ्रू या किसी भी थ्रू के दिया गया है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन. बट दैट स्टेटमेंट शुड डिफाइन द कॉज ऑफ हिज डेथ and the or the circumstances of that. I'll narrate a story, I'll give an example जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay, so this is the whole thing about dying declaration. Dying declaration is a statement.
either orally or documentary, made by a person who is in the expectancy of that or who has died, okay, and which determines the cause of death or the circumstances of the death. Giving you an example, it will be easier for you to understand. Example, मेरा कोई एक दोस्त मेरे को बोल के गया, पता है मैं बहुत like मेरा उधारी है, somebody took money from me, I will go and I'll collect that money from that person. Okay, will you accompany me? I said नहीं, मेरे पास काम है, I cannot accompany you. What happened is this, ठीक है, he went. Okay, my friend went to collect money. Now what happened is, I'm sorry, okay, well, my friends will hate me for this, but okay, for your example, what happened in this condition is my friend went alone. 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, my friend is not turning up. फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद उसका लाश मिला मुझे मतलब जो भी I got the lash of that friend. Now जो लास्ट स्टेटमेंट उसने मुझे बोल के गया ना कि आई एम गोइंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम दैट पर्सन, ओके, कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकता है, ओके, कि उस सर्कमस्टेंसेस से हम लोग कर सकते हैं कि चलो उसका उधारी था, मोटिव पता चल रहा है उससे, उधारी था, ओके, वो लेने गया, वापस ही नहीं आया, तो जो बंदे से वो उधारी लेने गया है, दैट पर्सन विल बी द वन हु विल बी कंसिडर्ड टू किल दैट पर्सन. उससे समझ सकते हैं ना. तो जो स्टेटमेंट वो ऑरली बोल के गया है, दैट इज, या कोई एक पेपर में कुछ एक लिख के आदमी जाता है और कुछ काम करता है जिससे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो आदमी मरा कैसे है, या उससे सर्कमस्टेंसेस अराइज कर सकते हैं उसका मरने का, दैट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन. ओके, इफ यू वांट, दिस थिंग इज देयर इन योर बेयर एक्ट. आप बेयर एक्ट खोलना, बेयर एक्ट का क्लॉज 1 में अच्छे से ये बात जो है मेंशन किया हुआ है. सो वो बेयर एक्ट वाला लैंग्वेज मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है और ये ब्रेक डाउन विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो नाउ गोइंग बैक टू दिस बेयर एक्ट, when it relates to the cause of that, when the statement, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, statement, okay, made by a person to the cause of his death or as to the circumstances of the transaction resulted in his death, okay, in which case the cause of the death comes into question. तो ये क्या हो जाता है, ये dying declaration हो जाता है. So this is how we break the barracks. Okay, so barracks से आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं और barracks पढ़ने का, this is the way. So the first thing is cases in which the statements are relevant. कौन सा स्टेटमेंट कोर्स के लिए रिलेवेंट हो जाता है, द पर्सन हु इज डेथ का, ओके, कैन नॉट बी फाउंड का, ये है 1 में बोला हुआ है, व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ. सो व्हेन द स्टेटमेंट, मैंने पहले बोला है, स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु इज डेथ, ओके, क्या बताता है, उसका कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस जिससे उसका डेथ हुआ है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. Now let's move to the next one, the essentials. क्या क्या essentials है हम लोगों का dying declarations का. Okay, so here the first essential is statement can both be oral and documentary. जो स्टेटमेंट है आपका वो बोथ आपका ऑरल भी हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है. ऑरल मतलब आप, मेरा दोस्त से जैसे मुझे बोल के गया ना कि आई एम गोइंग एंड आई एम टेकिंग द मनी, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर सकते हैं. या फिर एग्जाम्पल, मुझे उसने लास्ट में वो लिख के गया कि हे लिसन, लेट्स मीट अप, आई एम एक्चुअली गोइंग टू दिस प्लेस, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है या ईमेल करके गया है या कुछ भी करके गया है जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, दैट इज ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द डाइंग डिक्लेरेशन. जो मरने से जस्ट पहले का बात है, एक आदमी मरा उससे जस्ट पहले का जो बात है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन. जो स्टेटमेंट वो दे के गया है जिससे हम लोग उसका मरने का पता, एग्जाम्पल, माई फ्रेंड टेलिंग मी हे लेट्स मीट अप, that cannot be last and then he didn't turn up.
दैट विल नॉट बी अ डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि उससे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो आदमी मरा कैसे है। अगर हम लोगों को पता चलता है कि वो आदमी मरा कैसे है, दैट विल बी योर डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, फ्रॉम द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सो द स्टेटमेंट कैन बोथ बी oral, documentary. मैंने समझा दिया। First essential. Second essential is declaration must be related to both cause and circumstances. कैसे मरा है उससे पता चल रहा है हम लोगों को, या फिर उसका जो हम लोग स्टोरी उसने हम लोग को जो भी बोल के गया है। एग्जाम्पल ही सेड कि यार पता है मेरा एक दोस्त का यहाँ पे लड़ाई हुआ है, मैं वहाँ पे उसको हेल्प करने जा रहा हूँ। ओके, तो हम लोग क्या, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दैट कि यार वो लड़ाई में वो बंदा मर गया होगा अगर वो वापस नहीं आता तो। सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर डाइंग डिक्लेरेशन, जो आपका उसका कॉज ऑफ दैट या उससे सर्कमस्टेंसेस को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। द सेकेंड इसेंशियल। थर्ड इज द डेथ ऑफ अ पर्सन इज मस्ट, वो आदमी मरना चाहिए। व्हाट इफ द पर्सन सर्वाइव्स, we are going to study about that also. Okay, जब हम लोग केस लो करेंगे तब I'll give you an overview what happens when a person survives. डाइंग डिक्लेरेशन दे के गया, एक्सपेक्टेंसी था, ठीक है, उसको एक्सपेक्टेंसी मैं वहाँ पे अगर जाऊँगा मैं वापस भी नहीं आ सकता हूँ, एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ था। उसने कुछ एग्जाम्पल, एक केस लो है, दो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द केस लो। व्हाट हैपेंड वाज अ वुमन वाज बर्न्ड, ओके, शी सेट फायर ऑन हरसेल्फ बिकॉज शी didn't want to live with her in-laws. She hated her in-laws so much कि उसको फिर in-laws ने जब हॉस्पिटल लेके गया, उसने ना बोला कि मेरा जो पति है और मेरा in-laws है उन लोगों ने मुझे दावरी के लिए आग लगा दिया, and then that person died. Okay, so कोर्ट तो उसको वही बोलेगा ना कि यार ये मर गया है, उसने जो बोला है वो सही बात है। But what if he survives? बाद में there was a case she survived and बाद में पता चला कि उसने अपना बॉडी में खुद आग लगाया है। Okay, I forgot it was not a landmark case law but it was a case law. So वो एक चीज़ आपको जानना है कि जो death of the person है वो मैंडेटरी है, जो बोल के गया उसके बाद मरना चाहिए। अगर वो नहीं मरता तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। It will become okay if the death is must, if the death नहीं होता वो सेक्शन 145 में वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, और सेक्शन 157 में हो जाएगा कोरोबोरेटिव एविडेंस। अगर नहीं मरता है तो दिस वी विल स्टडी विद अ केस लॉ। ओके, नाउ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। यही पे डिफरेंस आता है हमारा इंग्लिश लॉ और हमारा इंडियन लॉ में। इंडियन लॉ में आप कुछ बोल के गए हो, आपको आपका ये अंदाज़ा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, आप जस्ट बोल के गए हो, बाद में आप मर गए हो। बट जो आप बोल के गए ना विदाउट दैट एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मैटर नहीं करता, इंडिया में नहीं करता, बट इंग्लिश लॉ में वो करता है। इंग्लिश लॉ में देयर शुड बी एन एक्सपेक्टेंसी। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो आपके अंदर वो एप्रीहेंशन है कि यार मैं अगर ये काम करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, आप कुछ भी कर रहे हो एंड यू डाई, उससे पहले का जो भी आप बोल रहे हो ना दैट विल कंसिडर टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन, वेदर आपका एक्सपेक्टेंसी था डेथ का या नहीं था। सो द कॉज ऑफ डेथ शुड बी इन क्वेश्चन। ऑब्वियसली ना मर्डर हुआ है, एक आदमी ऐसे भी मर गया है जिसका पोस्टमार्टम करके पता चला वो हार्ट अटैक है, आप उसको तो ब्लेम नहीं कर सकते हो कि यार इसका मर्डर हुआ है। सो ये जो डेथ है ना शुड बी इन क्वेश्चन कि हाँ उसका सच्ची में मर्डर हुआ है या उसका सच्ची में ग्रीवियस हर्ट करके किसी कल्पेबल होमिसाइड, नॉट ओनली से मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, लाइक ही वाज, वो होमिसाइड का केस है बोल के, देयर शुड बी द कॉज ऑफ दैट शुड बी इन क्वेश्चन। Then another thing, it is in India, okay, I'm telling you, यहाँ पे another difference आता है। इंडिया में both civil and criminal proceedings में हम लोगों का जो dying declaration है वो as a evidence मानते हैं। ओके, डाइंग डिक्लेरेशन जो है एज एन एविडेंस इज कंसिडर्ड इन इंडिया में बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में मानते हैं। दिस इज अनदर डिफरेंस। इंग्लिश लॉ में हम लोग उसको डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ क्रिमिनल केस में माना जाता है, सिविल केस में ये नहीं माना जाता, बिकॉज जो इंग्लिश लॉ में ये बोला गया है कि एक तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ होना चाहिए, सेकेंड ये होना चाहिए कि देयर शुड बी अक्यूज हु इज बीइंग, मतलब देयर शुड बी एन अक्यूज जिसको मर्डर, एक अक्यूज होना चाहिए। ओके, तो अक्यूज होने के लिए क्राइम करना पड़ेगा,
इसलिए दिस इज अ बिग डिफरेंस हियर. नाउ द थर्ड थिंग दैट वी आर गोना सी इज व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड. ओके, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, ये डाइंग डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे देने का क्यों ज़रूरत पड़ा, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका इतना ज़रूरत क्यों पड़ा. इट्स इन्वॉल्वमेंट इज, यहाँ पे मैंने अच्छे से दिया हुआ है, दिस इज़ अ मैक्सिम, दिस इज़ अ मैक्सिम जो आपको याद करना है. इसका मतलब नो वन एट द पॉइंट ऑफ अ डेथ इज प्रिज्यूम टू लाई. हम लोग मानते हैं कि कोई आदमी अगर मर रहा है ना, वो झूठ बोल के नहीं मरेगा. ओके, वो आदमी जो है वो कभी झूठ बोल के नहीं मरेगा. उसका जो लास्ट ब्रेथ ही इज टेकिंग, ही विल ऑलवेज सी द ट्रूथ. बट देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज अ केस लॉज, मणिपुर का सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो केस लॉज. अ मैन, ओके, अ वुमन वॉज मर्डर्ड एंड देन शी रिमेंबर्ड हर लवर. तो उसने क्या किया, मरते मरते उसने अपना लवर का नाम ले लिया. लवर था कहीं दूसरा जगह पे, उसने कुछ किया नहीं. पुलिस ने बोला ये तो डाइंग डिक्लेरेशन है, पकड़ लिया उसका लवर को. लवर को पकड़ने के बाद व्हाट हैपेंड, इट टुक अराउंड 22 years फॉर हिम टू फाइट द बैटल एंड प्रूव हिमसेल्फ नॉट गिल्टी. प्ली ऑफ अलाबाई उसने लिया था. ओके, ही टुक कि मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, हाउ कैन आई मर्डर. बट डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर एक आदमी का सोल कन्विक्शन हो सकता है. कुशल राव का केस है जो बहुत लैंडमार्क केस लॉज है डाइंग डिक्लेरेशन का. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. वन मोर केस लॉज आई फॉरगॉट टू से इज पकाला नारायण स्वामी का, जो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बात करता है. विल डिस्कस ऑन दैट आफ्टर दिस. नाउ इसमें बोला है नेमो मोरिटोरस Prasumitur, I don't know if I am pronouncing it wrong, but ये though it's written in English, आप थोड़ा pronunciation देख लेना इसका. Say no one at the point of the death is presumed to lie. मरते मरते कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा. ओके, इसलिए ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में ढाला गया है एज अ रिलेवेंट सोर्स ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना गया है डाइंग डिक्लेरेशन को. बिकॉज उसके सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर अगर वो सर्कमस्टेंसेस का साथ मिलता है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है केस का, अगर उसके साथ मिल रहा है डाइंग डिक्लेरेशन में जो भी लिखा हुआ है, तो दैट पर्सन जिसका नाम है डाइंग डिक्लेरेशन में या जिसका नाम बंदे या बंदी मरने से पहले बोला है, उसको हम लोग सजा दे सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड प्रिंसिपल इज द विक्टिम इज एक्सक्लूसिवली द आई विटनेस. आपका मर्डर होते हुए किसी ने नहीं देखा, आपने तो देखा. ओके, आपने तो देखा कि मुझे मारा है, मरते मरते मैंने मरने वाला का नाम बोला. सो आई एम द सोल आई विटनेस ऑफ माई केस. बाकी विटनेस मिल ही नहीं रहा है, तो आपका जो बात है, जो लास्ट वर्ड है बिफोर योर डेथ विल बी अनदर प्रिंसिपल. द विक्टिम इज एक्सक्लूसिवली आई विटनेस एंड हैंस द एविडेंस शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड. ये अनदर रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल को हम लोग आईपीसी में वी हैव इनकॉर्पोरेटेड this one as a dying declaration as a relevant fact or relevant piece of evidence. And next is, it is a big necessity. It becomes a big necessity. Example, something happened, an offense happened or you died. Okay, and we are not finding any other evidences except that dying declaration. Will it amount कि चलो बाकी कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ वही है, तो इसका ज़रूरत तो पड़ेगा ना अभी. सो ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, दिस आर द प्रिंसिपल्स, दिस आर इन्वॉल्व्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग डाइंग डिक्लेरेशन इन इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वट एवर पॉइंट आई एम गिविंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर योर प्रिलिम्स एंड फॉर योर मेन्स. स्पेसिफिकली मेन्स पर्सपेक्टिव क्लास हो रहा है. जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, यू हैव टू राइट आंसर दिस वे. लाइक इफ़ यू राइट डाउन द आंसर दिस वे, तो आपके पास टाइम भी बचता है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 मिनट्स आप दे सकते हो, 2 या 2.5 पेजेस आप लिख सकते हो. सो बिग आंसर्स, if you write it down, you will not even get time to finish up your paper. Should be very, आप बहुत स्पेसिफिकली एक पर्सपेक्टिव लेके आप चलोगे कि मुझे कैसे आंसर्स लिखना है, और हर एक क्वेश्चन का अलग आता है. अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे आंसर कैसे लिखने हैं. अगर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला, मुझे कैसे लिखना है. केस लॉज पूछे तो केस लॉज कैसे लिखने हैं. सो each and every टॉपिक और each and every way of they framing a question
has to be written in a certain pattern. So what we are doing here is I am giving overview of everything. Like dying declaration के ऊपर आपको जो जो भी पढ़ना है सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. So this is how you will prepare your notes and this is how you will study, how you prepare yourself for the mains examinations. Now आपका principle भी involved हो गया. Next is let us distinguish it between Indian law and English law. ये भी आता है. तो इंडियन लॉ में एज आई हैव सेड कि एक आदमी का मरने का एक्सपेक्टेंसी ज़रूरी नहीं है. मेरा दोस्त मारपीट करने गया, वो थोड़ी सोचा कि वो वहाँ पे जाके मर जाएगा, बट अगर वो मर गया, मरते मरते किसी का नाम लेके मरा है, तो वो इंडिया में डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है. बट दिस इज टोटली डिफरेंट इन इंग्लिश लॉ. ओके, इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नेसेसरी. आपको पता होना चाहिए कि आप मरने वाले हो, तभी डाइंग डिक्लेरेशन को इंग्लिश लॉ में वैल्यू दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाएगा. सो दिस थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू नो. नेक्स्ट इज इट इज अप्लाइड इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस इन इंडिया. एज आई हैव मेंशन, इंडिया में सिविल एंड क्रिमिनल केस बोथ में आता है, बट इन इंग्लिश लॉ में आप ये बोथ नहीं देखोगे. इट इज ओनली अप्लाइड इन क्रिमिनल केसेस वेयर द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड ऑफ मर्डर. ओके, सो ये आपको जानना है. एक्सपेक्टेंसी नेसेसरी, expectancy not necessary, applied in both civil and criminal proceedings, applied only in criminal proceedings. The word that I am underlining, आप भी वे अंडरलाइन कर सकते हो, वो भी अगर आपने याद कर लिया ना, आप एग्जाम में अच्छे से आंसर्स लिख पाओगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, who can record. ओके, ये एक केस लॉ है, रिसेंट केस लॉ है, 2020 का केस लॉज है, जिसमें बोला गया था. मैं आपको उस केस लॉज का एक ओवरव्यू दे देती हूँ. आप ये केस लॉ एक बार देख लेना. ये जो केस लॉ है ना, पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का, ये केस लॉ में बोला गया है कि जो आदमी मर रहा था, उनके पास और एविडेंस नहीं था, सिर्फ एक आदमी को वो बंदा उसका नाम बोल के गया और सर्कमस्टेंसेस बोल के गया कि वो कैसे मरा है. तो अभी क्या हुआ, तो अपोजिशन पार्टी ने बोला ना वहाँ पे मैजिस्ट्रेट थे, ना वहाँ पे पुलिस थे. ओके, तो हम लोग कैसे किसी दूसरे का बात सुनते हैं, वो तो झूठ भी बोल सकता है. तो कोर्ट हेल्ड दैट, ओके, कोर्ट हेल्ड दैट हु कैन अप्लाई में क्या होता है आपका, हु कैन रिकॉर्ड में आपका आता है, इट कैन बी रिकॉर्डेड बाय द magistrate also, by police or by any other person. But यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है ना, अगर ये बात मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, इट इज़ ऑफ हाईएस्ट वैल्यू. इसका जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहता है. मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई कुछ बोल के वो गुजर गया, सोचो कोई कुछ बोल रहा है, बोलते बोलते वो गुजर गया, वो तो सोल कन्विक्शन ही है, वो आदमी को पकड़ के डायरेक्ट जेल में डालेगा. हाईएस्ट वैल्यू माना जाता है. उसके बाद पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी बोलता है उसको माना जाता है. देन द थर्ड पार्टी, सो यू कैन से इज मैजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन हाईएस्ट वैल्यू है, उसके बाद पुलिस एंड उसके बाद एनी अदर पर्सन. ना वन थिंग, एनी अदर पर्सन या पुलिस के पास जो भी कुछ बोलता है ना, उसको हम लोग जो भी सर्कमस्टेंसेस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है. ओके, अनदर थिंग इज आई हैव बीन टेलिंग यू corroborative piece of evidence, contradictory piece of evidence, a contradiction, substantive piece of evidence, hearsay evidence, direct evidence. There are different types of evidence. So like we'll conduct a class on this, on different types of evidence, evidences, so that आपके लिए वो easy हो जाए. Substantive piece of evidence मैंने बोला, so many of you might be thinking कि ये सब क्या है. We'll have a class on these things, but try to understand what I'm saying here. Okay, magistrate has the highest value. पुलिस के पास है जो मैजिस्ट्रेट से थोड़ा कम उसका एविडेंशियरी वैल्यू हो जाता है, बिकॉज तब हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, हम लोग सर्कमस्टेंसेस के साथ पूरा मिलाने का कोशिश करते हैं जो भी बात बोला है. एंड देन थर्ड पार्टी, सो टू whom who can record dying declaration, मैजिस्ट्रेट, पुलिस और एनी अदर पर्सन. तो अगर आपको अच्छे से जानना है, आप केस स्टडी कर सकते हो, पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली, यानी से रिसेंट केस, तो 2020 का केस है. So you can give a better study on this one. Okay, coming to the next one,
इज द एविडेंशियरी वैल्यू। जब हम लोग ना एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपको जानने के लिए भी। चलो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, यूजुअली सबको पता है। अभी आपको दो चीज़ जानना है यहाँ पे। एक हो गया आपका एडमिसिबिलिटी और वी कॉल इट एन एविडेंशियरी वैल्यू, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट हैपन्स इफ द डिक्लेरेंस सर्वाइव्स। अगर डिक्लेरेंस सर्वाइव कर जाता है, सोचो उसने कुछ बोल के गया, हम लोग सोच रहे हैं कि वो डाइंग डिक्लेरेशन दे के गया है, बट देन ही सर्वाइव्स, वो कोमा में है तो हम लोग उसको, वो मर भी सकता है, वो भी हो सकता है, एंड ही सर्वाइव्स, देन इट इज नॉट अ dying declaration. We're gonna talk about this. So evidentiary value, I told you this case is very important. Okay, this case, अगर एक केस है, एक ये केस है, दूसरा केस है, शायद मैंने यहाँ पे ढाला नहीं, आई विल पुट इट अप फॉर यू, डोंट वरी। इट्स कॉल्ड पकाला नारायण स्वामी का केस है वर्सेस एम्परर का केस है। विल डिस्कस अबाउट दैट केस ऑल्सो। फर्स्ट इज कुशाल राव का केस। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के सोल बेसिस पे आप किसी को सजा दे सकते हो। ओके, आप ये बोल सकते हो कि चलो डाइंग डिक्लेरेशन दे के वो मरने से पहले कुछ भूल के गया, झूठ भी तो बोल सकता है, सच भी तो बोल सकता है। एज दैट प्रिंसिपल सेज, नोबडी इन हिज डाइंग बैड लाइज। ओके, मरने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता। तो वही प्रिंसिपल को मानते हुए ये वाला केस ये डिराइव करता है कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर हम किसी एक आदमी को सजा दे सकते हैं। वी कैन कन्विक्ट अ पर्सन solely on the base of dying declaration. So this case law is one of the most important case law of dying declarations आपको पढ़ने हैं। Then another thing is Queen Empress versus Abdullah। ये क्या हुआ था, जो क्वीन थे उसका गला काट दिया गया था, क्वीन या अब्दुल्ला का किसी एक का गला काट दिया गया था एंड शी कुडंट टॉक। तो मरते मरते उन्होंने क्या किया, हाथ से पॉइंट करके गया, जिसको उन्होंने पॉइंट किया उसी को इसे साइन की, उसी ने मुझे मारा है, दैट पर्सन वाज कन्विक्टेड। तो सिर्फ जो ओरल या डॉक्यूमेंट्री नहीं, अगर आप साइन या नोट से भी कुछ एक्सप्रेस करके भी दिखाते हो ना, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एविडेंशियरी वैल्यू इन डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये भी आपको देखना है, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड बाय साइन और बाय नोट्स एंड इट इज एडमिसिबल। ये क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में है। अनदर केस एज आई वुड से is पकाला नारायण स्वामी versus emperor। You don't understand my handwriting? I think मैं जो बोला है वो समझ लोगे। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसमें क्या हुआ था, ये जो पकाला नारायण स्वामी है ना, उन्होंने एक आदमी से 3000 रुपये लिया था। तब का बात है, बैक इन 1932 और 32 या 38 का बात है, फॉरगॉट द ईयर। तो पकाला नारायण स्वामी का क्या हुआ, 3000 रुपये लिया था और जिस आदमी से उन्होंने 3000 रुपये लिया था ना, वो आदमी जाते जाते बोल के गया, एक लेटर दिखा के गया। मतलब तब का दिन में तो लेटर से कम्युनिकेशन होता था। तो पकाला नारायण स्वामी ने क्या किया, उनको एक लेटर भेजा। उनको लेटर में बोला गया कि सुनो, तुम आके पैसे ले जाओ, यहाँ से पैसे ले जाओ। तो वो जाते जाते अपनी बीवी को वो लेटर दिखा के गया कि देखो उन्होंने मुझे वो शायद मुझे पैसे दे देंगे, देखो उन्होंने मुझे लेटर भेजा है, मैं जाके पैसे लेके आता हूँ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन के दिन क्या हुआ, ही दिन टर्न पुलिस रिपोर्ट भेजा। बाद में क्या हुआ, पुलिस रिपोर्ट में मिसिंग रिपोर्ट भेजा। बाद में 3 या 4 दिन के बाद ये जो आदमी है उनका 7 बॉडी पार्ट्स को काट के एक ट्रंक में उनका बॉडी मिला। ओके, एक ट्रंक का अंदर बॉडी मिला। नाउ ये पकाला नारायण स्वामी वाज टेलिंग में, आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेटर ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, आप उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि मैंने ही मारा है, मैंने लेटर भेजा, उससे तो कुछ लिखा नहीं हुआ है ना कि मैंने मारा है। तो कोर्ट ने ये बोला कि सी, हम लोगों ने जो पहले किया था कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपको कॉज ऑफ डेथ बता सकता है, किसने मारा, कैसे मारा, या फिर सर्कमस्टेंसेस बता सकता है। और आपने जो लेटर भेजा, फर्स्ट तो आपने उनसे पैसे लिए,
पैसे का आप लोग का बीच में लेन देन था, उससे समझ में आ रहा है मोटिव, आपने क्यों मारा होगा। सेकेंडली, वो जाने से पहले एक उसका जो लेटर है दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग था वो जो ट्रंक था ना जिसके अंदर बॉडी मिला था, उन्होंने ही उनका कुछ एक सर्वेंट को बोला था वो खरीद के लाने के लिए वही ट्रंक, ओके। तो दैट वाज अनदर थिंग। सो ये केस जो है, ये केस भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट अ डाइंग डिक्लेरेशंस के ऊपर। सो ये 3-4 केस है, एक कुशाल राव का है, एक क्वीन अब्दुल्ला वाला केस है, एक आपका पकाला नारायण स्वामी का केस है। तो ये सब केस लॉस आपको जानना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू नो डाइंग डिक्लेरेशन। आई हैव सेड द स्टोरी, यू डोंट हैव टू राइट डाउन द फैक्ट, जस्ट नो द क्रक्स ऑफ व्हाट इज देयर, what was held in that case, so that it becomes easier for you to understand. Now again, the first Kushal Rao ka case, first is your Kushal Rao का केस, then Queen अब्दुल्ला का, पकाला नारायण स्वामी का, पुरुषोत्तम वाला आप देख भी सकते हो, अवॉइड भी मार सकते हो। then coming to next is, oh I have पकाला नारायण स्वामी here, good, and King Empress 1939, as I say 38-39 का किसी एक ईयर का केस है। so it was 39 का केस, so 39 का केस है, 3000 रुपये को लेके हुआ था। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से मोटिव पता चल रहा था, फिर वो ट्रंक लाया, जो लास्ट लेटर दे के गया, वो सबसे हम लोग क्या वही लास्ट बात था डाइंग डिक्लेरेशन का बोल के पकाला नारायण स्वामी के केस में ये बोला गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, oh one more thing, no I forgot one case, wait, okay, just a minute, मकशूदन केस का नाम MAQ मकशूदन versus state of UP, I guess, if I'm not wrong, I think it is state of UP, okay, it talks about state of UP, मकशूदन versus state of UP। इसमें बोला गया है कि चलो हम लोगों ने डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया, एक आदमी मिसिंग है, एक आदमी बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, हम लोग ने ये सोचा कि चलो उसको मार दिया होगा, उसको बॉडी नहीं मिल रहा है, मिसिंग है, पर मिसिंग होने से पहले उसने जो भी बात बोला वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा, वो भी एक डिक्लेरेशन है ना, वो स्टेटमेंट जो है उससे कॉज ऑफ डेथ वगैरह पता चलता है। बट दैट पर्सन सर्वाइव्स, डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद वो जो आदमी है दैट पर्सन सर्वाइव्स। तो सर्वाइव अगर कर जाते हैं तो हमको क्या करना है, तो ये केस में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। आई विल रीड इट आउट, MAQSOODAN वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या बोला गया है कि अगर जो आदमी है, जो डिक्लेरेंट है, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, इफ दैट पर्सन सर्वाइव्स, okay, then this dying declaration will not be considered as a dying declaration, will no longer be considered as a dying declaration। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, इट विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, एंड अंडर सेक्शन 145 एंड 157 ये हो जाएगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए काम आएगा, कोरोबोरेट करने के लिए काम आएगा, ओके, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए काम आएगा, कोरोबोरेट करने के लिए काम आएगा, आपका सेल्फ डिटरमाइनिंग, सेल्फ हार्मिंग एंड सेल्फ मतलब जो खुद के लिए सेल्फ हार्मिंग सेक्शन 21 में जो दिया हुआ है आपका एज अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट बोल के है, इसके लिए काम आएगा। एंड एट द सेम टाइम आप उसको एज अ रेस गेस्टे ले सकते हो, रेस गेस्टे करने के लिए आपको इसका काम आएगा, बट इट विल नॉट बी हेल्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। सो ये वाला केस में बोला गया है, दिस केस एंड दिस वाज आस्क्ड, ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे, एक्चुअली फॉरगॉट द ईयर इन विच इट वाज आस्क्ड, बट इट वाज आस्क्ड व्हाट हैपेंस इफ द डिक्लेरेंट ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन सर्वाइव्स।
इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स, कहीं पे एक्चुअली ये वर्ड आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया हुआ है, बट वी कैन डिराइव इट फ्रॉम अ केस लॉज, फ्रॉम द केस स्टडीज, एंड द केस इज दिस केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें बोला गया है ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, इट विल नो लॉन्गर बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रहेगा, वो एक कॉरबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के हिसाब से यूज किया जाएगा, या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, या सेल्फ हार्मिंग का जो स्टेटमेंट होता है उसके लिए रेस्ट गस्टी के हिसाब से उसको यूज किया जाएगा, बट ये डाइंग डिक्लेरेशन बन के नहीं रहेगा। सो यही सब है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो डाइंग डिक्लेरेशन के पर्सपेक्टिव में हम लोगों को जानना था कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए एसेंशियल्स मतलब क्या क्या होना पड़ेगा आपका, जो मैंने अभी बोला है वो सब आपका डाइंग डिक्लेरेशंस में होना पड़ेगा। आफ्टर दैट थिंग, डाइंग डिक्लेरेशन के बाद वी स्टडीड द प्रिंसिपल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डाइंग डिक्लेरेशन, कि एक आदमी मरते मरते झूठ नहीं बोल के जा सकता, वो आपको जानना था। फिर आफ्टर दैट इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंसेस है, दैट ऑल्सो वी डिड। हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशंस, उसका एविडेंशियरी वैल्यूज ऑल्सो वी हैव स्टडीड विद द केस लॉज, एंड लास्टली व्हाट हैपेंस इफ द डिक्लेरेंट हु इज सपोज्ड टू गिव अ डाइंग डिक्लेरेशन सर्वाइव्स, वो क्या करता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। सो दिस इज इनफ आई थिंक फॉर नोइंग यू डाइंग डिक्लेरेशन। Thank you so much.